हेलो स्टूडेंट, आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं क्या? बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। These biomolecules are nothing but they are lifeless molecule combine in a specific manner to produce life or control biological reaction। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं they are lifeless molecule होते हैं and combine in a specific manner to produce life or control biological reaction। तो we can define biomolecules are nothing but biomolecules are nothing but these are lifeless molecules. These are lifeless molecule combine in a specific manner, combine in specific manner to produce life or control biological reaction, control biological reaction। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को बच्चा लोग हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स आर, देयर आर वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस व्हाट? लाइफ। पहला जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन। Third biomolecule is nothing but nucleic acid. Fourth one is nothing but vitamins, hormones, lipids and enzymes। ये सब बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इन्हीं चैप्टर्स के बीच में। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ द फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, लिपिड्स एंड एंजाइम्स। As we know that biomolecules are nothing but they are lifeless molecule combined in a specific manner to produce what? Life। तो how your biomolecules are related with the living organism, that can be understood with the help of concept map। तो biomolecules are related with living organism, that can be understood with the help of concept map। with the help of what? concept map। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चा लोग, लिविंग ऑर्गेनिज्म it is made up of number of organs। it is made up of number of organs Organs are made up of number of tissues,
tissues are made up of number of cells. Tissues are made up of number of cells, and cells are made up of number of organelles. And finally your organelles are made up of biomolecules. So your living organism is totally related with your biomolecules. See, living organism is made up of number of organs. Organs are made up of tissues. Tissues are made up of what? Cells. Cells are made up of what? Organelles. And finally your organelles are made up of what? Nothing but biomolecules. So this way your biomolecules are related with living organism. The first biomolecules which we are going to study, that is nothing but what? Carbohydrate. अब ये कार्बोहाइड्रेट को हाउ विल यू डिफाइन कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए मैं 3 कंपाउंड्स ले रहा हूँ. पहला कंपाउंड्स मैंने लिया है ग्लूकोज, तो पहला कार्बन अल्डिहाइड. नाउ सी, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो C6H12O6 होता है. यदि मैं ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखूँ तो हाउ वी कैन राइट द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? तो पहला कार्बन अल्डिहाइड, लास्ट कार्बन CH2OH, बाकी सब कार्बन HOH, HOH, HOH and HOH. So this compound is called as what? Glucose, whose molecular formula is C6H12O6. C6H12O6. I consider another molecules, and that is called as what? Fructose. फ्रुक्टोज का भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है. तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? पहला कार्बन CH2OH, सेकेंड कार्बन C डबल बॉन्ड O, लास्ट कार्बन CH2OH, बाकी सब कार्बन को H और OH के फॉर्म में लिखना. तो OHH, HOH, H और OH. This compound is called as fructose, having molecular formula C6H12O6. Third compound I take C6H10O5. वाटर ऐड कर देते हैं, इट गेट हाइड्रोलाइज एंड टू फॉर्म C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज. ये मैंने जो कंपाउंड लिया बच्चा, ये मैंने स्टार्च लिया हुआ है. क्या लिया है? स्टार्च. स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है वो C6H10O5, और ये जो होता है इट इज फॉर्मिंग व्हाट? ग्लूकोज. क्या बनाता है? ग्लूकोज. नाउ इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट? एसिमेट्रिक कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन. What do you mean by chiral carbon?
a carbon which is directly bonded by 4 different atoms or group of atoms. A carbon which is directly bonded by 4 different atoms or group of atoms, such carbon is called as asymmetric carbon or chiral carbon. Let us observe in glucose molecule how many asymmetric carbon atoms are present. See, this carbon atom is asymmetric carbon. How it is asymmetric carbon? ये आपका एक ग्रुप हो गया, OH इस दूसरा ग्रुप, H तीसरा, और ये पूरा एक ग्रुप. तो दिस इज व्हाट कंटेनिंग 4 different atoms or group of atoms. तो 1 asymmetric carbon. This is also asymmetric carbon. This is also asymmetric carbon. This is also asymmetric carbon. So glucose has 4 asymmetric carbon. That is what? Chiral carbon atom. Similarly, let us observe in fructose molecule. This carbon atom is also asymmetric carbon. This carbon is asymmetric carbon. This carbon is asymmetric carbon. See how? ये आपका पूरा एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पूरा एक. तो दिस कार्बन एटम इज व्हाट? माय एसिमेट्रिक कार्बन. दिस कार्बन एटम इज आल्सो एसिमेट्रिक कार्बन. दिस इज आल्सो एसिमेट्रिक कार्बन. बट दिस एंड दिस कार्बन इज नॉट एसिमेट्रिक कार्बन because there are 2 same hydrogens are directly attached to carbon atoms. So fructose has how many asymmetric carbon or chiral carbon? Is nothing but 3. ये मैंने स्टार्च लिया था. जैसे एक सिंपल एग्जांपल बोलूँ, आपको ब्रेड दे दिया, आपको ब्रेड खाने के लिए दिया, तो जब आप उसको ब्रेड को चबाओगे तो सलाइवा जो होगा वो ब्रेड के साथ मिक्स हो जाता है, एंड जिसके वजह से स्टार्च का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और इनिशियली यू फील लिटिल बिट स्वीट इन टेस्ट. बट जैसे जैसे आप चबाना कंटिन्यू रखते हो तो कुछ टाइम के बाद वो ब्रेड आपको फीका लगने लगता है, पूरा का पूरा, मतलब हाइड्रोलिसिस इज कंप्लीटेड. तो ये स्टार्च है जो हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन गया? ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये फ्रुक्टोज भी हो सकता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. मैं स्टार्च बोल रहा हूँ तो इट इज फॉर्मिंग व्हाट? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. देन हाउ यू कैन डिफाइन कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट, बच्चा लोग, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxyaldehyde. This is what? Polyhydroxyaldehyde. How it is? देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है. एक तो आपका अल्डिहाइड है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है क्या? अल्कोहल. दैट इज व्हाट? OH. अल्डिहाइड एंड OH में प्रायोरिटी किसको मिलेगा? प्रायोरिटी ऑर्डर होता है. एक फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है. जो प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप पहले आता है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है. जो बाद में आता है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है. सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज रिटन इन द प्रीफिक्स मैनर. तो अल्डिहाइड इज माय पहले आएगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, एंड OH बाद में आता है. सर कैसे? यू नो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं मालूम है तो मैं एक बार बोल देता हूँ. द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइन, एल्कीन, अल्काइन, ईथर, नाइट्रो एंड हेलो. अल्डिहाइड पहले आता है, अल्कोहल बाद में आता है. तो अल्कोहल विल एक्ट, दैट इज OH विल एक्ट एज ए व्हाट? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप. क्या एक्ट करेगा? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप. सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, तो OH का जो प्रीफिक्स होगा वो हाइड्रोक्सी होता है. ऐसे कितने OH ग्रुप है? 1 2 3 4 एंड 5. सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट? पेंटाहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड. क्या बोलते हैं बच्चा लोग? पेंटाहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज PHA.
PHA स्टैंड फॉर व्हाट? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड। पॉली का मतलब मोर देन वन, दिस इज पेंटा है, पेंटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, यू कैन राइट पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड ऑल्सो। इसमें आ जाओ आप, इस कंपाउंड को देखो, ये क्या है आपका? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है? अल्कोहल है। तो अल्कोहल बाद में आता है तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन लिख देता हूँ इसको, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसको सिंपली क्या बोलेंगे? PHK, भर भर के OH ग्रुप है इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी। यहाँ भी आप इसी तरह कर लो, इट इज़ व्हाट? पॉलीहाइड्रोक्सी, भर भर के OH ग्रुप है, सो इट इज़ व्हाट? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब डिफाइन करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को। आपको याद होगा, आपने आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा होगा कि ये कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है और एसिमेट्रिक कार्बन है, तो वो कंपाउंड्स क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और सच कंपाउंड, स्टार्च एक कंपाउंड है, सच कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, सच कंपाउंड इज नोन एज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। तो वी कैन डिफाइन बच्चा दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट it is optically active polyhydroxy aldehyde और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और such compound which on hydrolysis gives polyhydroxy aldehyde और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, such compounds are called as क्या बोलते हैं इनको हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। They are called as what? Carbohydrate. तो carbohydrates are nothing but they are polyhydroxyaldehyde और polyhydroxy ketone और such compound which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehyde और polyhydroxy ketone. Such compounds are called as कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं इन दीज टू स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन कितना है बच्चा? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन 4। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इक्वल टू होता है 2n, दैट इज 2⁴, तो 16 आइसोमर्स होंगे। ये 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? 16 स्टीरियो आइसोमर्स।
तो ग्लूकोज हैज़ 4 asymmetric carbon atoms. Number of possible isomers are nothing but 16 isomers. What are enantiomer बच्चा? Enantiomers are nothing but they are non-semi, non-SIMI. What do you mean by non-semi? Non-semi का मतलब होता है they are nothing but non-superimposable mirror image. Non-superimposable mirror image, they are called as what? Enantiomer. Enantiomer is nothing but like this. They are what? Non-superimposable mirror image. तो they are called as what? Enantiomer. मैंने आपको पूछा कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कितने इनैंशियोमर पेयर फॉर्म करेगा, तो कितने आइसोमर बन रहे बच्चा लोग? कितने बन रहे हैं? 16 आइसोमर्स बन रहे हैं. तो 16 आइसोमर्स का इनैंशियोमर पेयर कितना होगा? इनैंशियोमर पेयर कितना होगा? 8 पेयर्स होंगे. मैंने आपको पूछ लिया इसके कितने ऑप्टिकल एंटीपोड्स बनेंगे. ऑप्टिकल एंटीपोड्स इनैंशियोमर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपोड्स बोलते हैं. तो इसके भी कितने पेयर्स होंगे? 8 पेयर्स होंगे. ये मैं पूछ लूँ इसके कितने इनैंशियोमॉर्फ बनेंगे? इनैंशियोमॉर्फ. How many enantiomers are formed? That is what? 8 pairs. तो enantiomers are nothing but they are non-superimposable mirror image. 16 isomers बन रहे हैं तो इसके 8 pairs enantiomer pair बनेंगे. 8 pair optical antipodes होंगे. 8 pair enantiomorph होंगे. अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, how many sp2 hybridized carbon atoms are present in the glucose molecule? How many sp2 hybridized carbon atom present in glucose molecule? तो how will you determine the hybridization of any carbon, oxygen and nitrogen? बच्चा एक शॉर्टकट बताता हूँ, याद रखो, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो. क्या? काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस काउंट द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर -1. जो भी नंबर आता है राइट एट द टॉप ऑफ व्हाट? sp. इट बिकम व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज. तो काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1, 2 एंड 3. डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई. तो काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, 2 एंड 3. 3 प्लस 0, लोन पेयर इज 0, -1. जो भी नंबर आता है राइट एट द टॉप ऑफ व्हाट? sp. इट बिकम व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज. तो कितना sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर? 1. नाउ इफ आई कंसिडर this carbon, count the total number of sigma bond 1, 2, 3 and 4. 4 sigma bond plus 0, 4 plus 0 minus 1, 3 sp3 hybridized. So if you determine these 5 carbon atoms are nothing but they are sp3 hybridized. तो sp3 hybridized कितने कार्बन होते बच्चा इसमें? कितने कार्बन है? 5 कार्बन एटम्स. 5 carbon atoms are sp3 hybridized. This is what? 1 carbon atom. 1 carbon atom is what? sp2 hybridized. चलो सर इतना लंबा मुझे याद नहीं रहा तो एक सिंपल और ट्रिक बताता हूँ. सभी सिंगल बॉन्डेड कार्बन आइटम क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं. एक डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है. 2 डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम क्या होंगे? sp हाइब्रिडाइज होगा. और एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आइटम इज sp हाइब्रिडाइज. तो सी दिस इज डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम, तो इट इज व्हाट? sp2 हाइब्रिडाइज. ऑल अदर कार्बन आइटम्स आर नथिंग बट दे आर सिंगल बॉन्डेड, सो इट इज व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज. कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं. ये आपका कौन सा ग्रुप था बच्चा? अल्डिहाइडिक ग्रुप था. दिस इज माय अल्डिहाइडिक
aldehydic group. This is my aldehydic group. अल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहल में प्रायोरिटी किसको मिलता था? अल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रायोरिटी मिलता है, OH को बाद में आता है. जब OH बाद में आता है तो इट इज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप. सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज रिटन इन द प्रीफिक्स मैनर. तो दिस इज व्हाट प्रीफिक्स. तो पॉलीहाइड्रोक्सी, दिस इज व्हाट अल्डिहाइड. नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. 1 degree alcoholic group. 1 degree alcoholic group. How many 1 degree alcoholic group and 2 degree alcoholic group present in glucose? How many? CH2OH is what? Primary alcoholic group. CHOH is a secondary. So 1, 2, 3 and 4. 4 secondary alcoholic group and 1 primary alcoholic group. 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. तो देखो कितनी सारे इंफॉर्मेशन को मैं लिख सकता हूँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो पहला मैंने बोला ग्लूकोज कंटेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैविंग हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम? 4 एसिमेट्रिक कार्बन. इफ यू नो द एसिमेट्रिक कार्बन एटम यू कैन डिटरमाइन द पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर 2n, वेर n रिप्रेजेंट्स योर एसिमेट्रिक कार्बन. तो n 2/4 तो 16 स्टीरियो आइसोमर्स बन गए. ये जो 16 स्टीरियो आइसोमर्स को है, मैंने आपको पूछा ये कितने इनेंशोमर पेयर बनाएगा? तो इनेंशोमर्स आर नथिंग बट व्हाट? दे आर नॉन सीमी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं. तो इनेंशोमर पेयर कितना बनेगा? 8. ऑप्टिकल एंटीपोड्स कितने बनेंगे? 8. और इनेंशोमॉर्फ कितना बनेगा बच्चा लोग? इट इज ऑल्सो 8 पेयर्स. कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स है? 1 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. कितने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है? देयर आर 4 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन. हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप? हाउ विल यू आइडेंटिफाई प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप? जिस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप CH2OH होगा वो प्राइमरी अल्कोहलिक, CHOH होगा तो सेकेंडरी अल्कोहलिक और COH होगा तो टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है. तो ये प्राइमरी हो गया CH2OH एंड अदर 1, 2, 3 and 4 दीज आर व्हाट? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप. तो 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप इज 1, 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप इज व्हाट? 4. सिमिलरली वी कैन राइट फॉर बच्चा फ्रुक्टोज के लिए भी इसी तरह लिख सकते हैं हम लोग. तो लेट अस राइट इट फॉर फ्रुक्टोज ऑल्सो. Number of asymmetric carbon atom. Number of asymmetric carbon atom कितने बच्चा लोग? इसमें asymmetric कार्बन 3 है. 1, 2 and 3. जो एस्ट्रिक मैंने किया है वो क्या है? क्या इंडिकेट करता है? कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन. इफ यू नो द एसिमेट्रिक कार्बन एटम, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बच्चा लोग 2n, वेर n स्टैंड फॉर व्हाट? एसिमेट्रिक कार्बन. तो 2 इज व्हाट? 8. 8 स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा. कितने बनेंगे? 8 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे. अब बच्चा मुझे बताओ इसके भी कितने इनेंसोमर पेयर्स होंगे? हाउ मेनी इनेंसोमर पेयर्स आर फॉर्म्ड? इनेंसोमर पेयर कितने होंगे? इनेंसोमर ऑप्टिकल एंटीपोड एंड इनेंसोमॉर्फ. अब देखो 8 मतलब 4 पेयर्स बनेगा. तो इनेंसोमर पेयर्स कितने होंगे? 4. ऑप्टिकल एंटीपोड्स कितना होगा बच्चा? 4 पेयर्स. एंड इनेंसोमॉर्फ भी कितने होंगे? 4 पेयर्स. नाउ tell me how many sp2 hybridized carbon atoms are present? This is what? sp2 hybridized carbon.
sp2 hybridized carbon. How it is sp2 hybridized carbon? Because it is doubly bonded carbon atom. अभी मैंने आपको बताया डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम इज sp2 हाइब्रिडाइज. नहीं आता है तो यू कैन डिटरमाइन. कैसा बोला था डिटरमाइन करने के लिए? काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस काउंट द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर -1. तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 and 3. 3 plus 0 -1 that is sp2 hybridized. How many sp3 hybridized carbon? Single bonded carbon atom sp3 hybridized. So 1 2 3 4 and 5. So we have 5 sp3 hybridized carbon atom. sp3 hybridized 5 carbon atoms. कितने हैं? 5 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है. कितने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप और कितने सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है बच्चा लोग इसमें? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, दिस इज माय प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, दिस इज माय प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड दिस इज व्हाट? सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप. तो यू कैन राइट हियर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, primary alcoholic group, and this is my what? Secondary alcoholic group. Primary alcoholic group is 2, secondary alcoholic group बच्चा कितना है? 3. This is what? CHOH, CHOH and CHOH. कितने CHOH हैं? 3. How many CH2OH are there? That is what? 2. So they are what? CH2OH is primary or CHOH is what? Second degree. अंडरस्टूड बच्चा लोग? तो कार्बोहाइड्रेट्स को फाइनली हम डिफाइन कर सकते हैं. तो कार्बो जो इनिशियल जो मॉडर्न अभी हम लोग यूज़ करते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, वो ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं. अर्लियर डेज में कुछ और डेफिनेशन यूज़ किया जाता है, वो अभी हम देखने वाले हैं. तो कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन करोगे आप लोग? इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxyaldehyde, that is PHA, or PHK, that is polyhydroxyketone, or such compound which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. Such compounds are called as carbohydrates. क्या बोलते हैं बच्चा लोग? कार्बोहाइड्रेट्स. अच्छा, एक पॉइंट्स है और, दैट इज इफ यू सी दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. सी द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन ये भी सेम है, बट सी योर फंक्शनल ग्रुप. यहाँ अल्डिहाइड है, यहाँ क्या है? कीटोन. तो दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर. तो ग्लूकोज that and fructose, they are functional isomer. तो glucose and fructose both are functional isomer with each other. Both are functional isomer with each other. So this glucose and fructose both are having same molecular formula, same arrangement of carbon chain, but they differ in the functional group. That's why they are called as functional isomer of each other. ये जो अर्ली केमिस्ट थे बच्चा लोग, ये कार्बोहाइड्रेट किसी भी सब्सटेंस को कार्बोहाइड्रेट किस बेसिस पे बोलते थे? जैसे नाम से ही पता चलता है, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर. ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन के चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स are surrounding, that compounds are called as what? Carbohydrate. So early chemists noticed that carbohydrates are those compounds in which carbon atoms are surrounded by large number of water molecules.
एज द नेम सजेस्ट, कार्बो, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब वाटर, हाइड्रेट भर भर के पानी है, पानी है किसके साथ में, वाटर है, कार्बन के साथ में वाटर है, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या, कार्बोहाइड्रेट। They have also given a general formula and that is nothing but कार्बोहाइड्रेट का अर्लियर डेज में जनरल फॉर्मूला था CxH2OY। तो अर्ली केमिस्ट noticed that carbohydrates are those substances, carbohydrates are those compound in which carbon atoms are surrounded by large number of water molecule। बच्चा वर्ड को स्प्लिट कर दो, कार्बो का मतलब क्या, कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, दैट इज हाइड्रेट, दैट इज hydrates of carbon, hydrates of what, carbon। they gives a general formula also। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2OY, CxH2OY, where x and y are integers, where x and y are integers। इंटीजर्स का मतलब कोई नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चा लोग हम लोग देखते हैं एक, I take a molecular formula of glucose। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है बच्चा, C6H12O6। दिस फॉर्मूला आई कैन कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म, दैट इज C6H2O6 टाइम। दिस इज सेटिस्फाइंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ योर carbohydrates, so glucose is a carbohydrate। I consider one more compound that is called as what, sucrose। सुक्रोज ले लेता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज C12H2O11 times। दिस इज नथिंग बट अ सेटिस्फाइंग योर कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला, तो इट इज अ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, राइट। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ वाटर सराउंड होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, हैविंग जनरल फॉर्मूला CxH2OY, where x and y are the integers and these are the examples। बट आगे चल के जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ बच्चा लोग, तो एक कंपाउंड आया जिसका नाम था एसिटिक एसिड। क्या था, एसिटिक एसिड। यदि मैं एसिटिक एसिड ले लूँ, एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है CH3COOH. We can write its molecular formula also. Molecular formula क्या होगा इसका? Molecular formula is how many carbon atoms? 2. How many hydrogen total? 4. Oxygen is 2. तो C2H4O2. You can write into H2O 2 times. कर सकता हूँ मैं. दिस इज ऑल्सो अ सेटिस्फाइंग द ग्लूकोज का जनरल फार्मूला. तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? एसिटिक एसिड क्या बच्चा लोग कार्बोहाइड्रेट होता है? आपको एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तो आप एसिटिक एसिड पियोगे? नहीं. एसिटिक शक्ति के लिए एसिटिक एसिड लेंगे? नहीं, नेवर. इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट दो इट इज सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट. तो मैं लिख सकता हूँ एसिटिक एसिड is not a carbohydrate, but also satisfy the general formula of carbohydrate. सेटिस्फाई द जनरल फार्मूला ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट. तो एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट स्टिल इट इज सेटिस्फाइंग द जनरल फार्मूला ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट. एक कंपाउंड और होता है बच्चा लोग जिसका नाम है रैमनोज. इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H12O5 होता है. C6H12O5. It does not satisfy the general formula of carbohydrate. Does not satisfy the general formula of your carbohydrate, that is CxH2O5, but it is a carbohydrate molecule. तो रैमनोज इज व्हाट? इट इज कार्बोहाइड्रेट. इट इज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल. कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, but not satisfying the general formula of carbohydrate. Not satisfying the general formula of what? कार्बोहाइड्रेट. मतलब ये जो जनरल फार्मूला है ये लिटिल बिट क्या करता है? कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बच्चा लोग. इट इज़ नॉट गिविंग द क्लियर पिक्चर अबाउट व्हाट? कार्बोहाइड्रेट. इसलिए इस फार्मूला को we have ruled out and we define another definition of carbohydrate, that is it is optically active polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone or such compound which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो अर्ली केमिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था? कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन के चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ वाटर सराउंड करता है. ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन. दे अर्लियर डेज में साइंटिस्ट हैज़ गिवन अ जनरल फार्मूला, दैट इज कार्बोहाइड्रेट का था CxH2O5, वेयर X and Y आर नथिंग बट योर इंटीजर्स. If I consider a glucose molecule having
having molecular formula C6H12O6, it is satisfying the general formula of carbohydrate, matlab glucose is a carbohydrate. Sucrose is also satisfying the general formula, so sucrose is also carbohydrate. But if I consider a one molecule known as what, acetic acid, whose molecular formula is C2H4O2, इसको यदि मैं convert करूँ तो इसका formula होगा C2H2O2 times. It is also satisfying the general formula of carbohydrate, but it is not a carbohydrate. Acetic acid is not a carbohydrate, but still it is satisfying the general formula of your carbohydrate. One compound is that is ramenose, having molecular formula C6H12O5, and it does not satisfy the general formula of your carbohydrate, but it is a carbohydrate molecules. That means this general formula is not giving the actual picture of your carbohydrate. Hence this formula is ruled out, and we define the other definition of carbohydrate, and that is nothing but it is optically active polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone or such compound which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone.